Hello friend, this is the Sendra Kumar Rana, FNB cost controller, and you are watching my YouTube channel FNB Controls. So guys, now I want to explain food cost controls. How to do the food cost controls? What is the factor to reduce the food cost and get the high profit? So guys, you know this, if you are reducing the food cost, if you are this discussing about the food cost, that means definitely you increase your the profit. Okay, now what is the factor, what is the key factor for reduce the food cost? So now the first number is the purchasing. Okay, the first number is the purchasing. So why purchasing is the very important thing. So buy the right quality. If you are buying the raw material from this any supplier, any markets, it should be quality, the very important things. Quantity is also supplier and the right price. They have the four these beams to reduce the food cost. Okay, now the second number is the receiving. If you are receiving from this market supplier, it should be checked quality, quantity, price, ensure proper documentations. Okay, what is the proper documentation? Means आप जो रिसीविंग कर रहे हो, जो मटेरियल्स रिसीविंग कर रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं है, क्वालिटी प्रॉपर है नहीं, साइज है या नहीं है, और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपका जो इस खरीदने के लिए आपने जो पीओ बनाया होगा, आपने रिक्वेजिशन डाला है, कमांड दिया है, वो परफेक्ट है या नहीं है, वो ऑथराइज्ड है या नहीं है. ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट नंबर थर्ड, स्टोरेज. सी स्टोरेज एट द करेक्ट टेम्परेचर. यू नो दिस वेरिएबल्स की आप हर एक इंग्रेडिएंट्स का जो है वो टेम्परेचर अलग अलग पे रखना चाहिए. बिकॉज यू नो दिस, इफ यू आर स्टोरिंग द वेजिटेबल्स, दैट मीन्स यू हैव द अनदर्स दिस कोल्ड स्टोर. If you have the meat, so you have to another cold store, and you have any the ice cream and something like the frozen item, so you keep in this some another temperature or cold room. Okay, now what is the FIFO? FIFO means first in and first out. Use the what we have in the leftover in this stock, and second you buy what you buy from the market, you keep inside. Okay, now point number 4, production. Means what is the production? See, this is a part of the very important things for hotel industry. You know this, lot of this production happening in these kitchens. So there is also too much, maybe it's the leakages. Okay, so follow the standard recipe. What is the standard recipe? See, if you are the doing the business, if you are selling something, if you design the menu, if you are created the menu, okay, so what we have item in this menu, so you make this what recipe, standard recipe, what we have in this portion, what is the portion size, and हम इसको कौन सी पोर्शन बॉल में सर्व करेंगे, कौन सी प्लेट्स में सर्व करेंगे, इसकी साइज क्या होगा. सो यू हैव टू डिसाइड इट बिफोर. ओके, आप पोर्शन कंट्रोल मीन्स व्हाट, आपने रेसिपी बनाया तो उसी हिसाब से आपको क्या करोगे, एक पोर्शन डिजाइन करोगे कि ये जो आइटम्स है, ये जो दिस मेनू आइटम्स है, वो सूप बॉल में जाएगा, पोर्शन बॉल में जाएगा, मंकी बॉल में जाएगा, या कोई और प्लेट्स में यूज करेगा. दैट मीन्स आपको उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, इसको डिजाइन करना होगा. ओके, नो मिनिमाइज द वेस्टेज, मिनिमाइज द वेस्टेज. सो दोस्तों, हमने बताया कि ये जो प्रोडक्शन है, ये काफी जो हम फूड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. ये मेजर पॉइंट्स होता है एक फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने में. सो आपके पास अनट्रेंड स्टाफ है, वो क्या करेगा, वो बर्न कर सकता है या ज्यादा पील कर सकता है, या जिस पोर्शन कंट्रोल से वो फिक्स नहीं कर सकता है. कब किसी पोर्शन में जो है से ज्यादा ऑयल डाल देगा, कम मसाला डालेगा, या और भी ऐसे कुछ चीजें कर सकता है जिससे आपको पोर्शन कंट्रोल से है वो डिसबैलेंस हो जाएगा. नाउ कम ऑन दिस पॉइंट नंबर 5, द पोर्शन कंट्रोल. सी, पोर्शन कंट्रोल मीन्स व्हाट, सर्व द स्टैंडर्ड पोर्शन एज पर द रेसिपी. आपने जो रेसिपी बनाया है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, सर्विस करना है आपको. अवॉइड द ओवर पोर्शनिंग, और ये भी आपको अवॉइड करना है कि जो आपका पोर्शन साइज है डिफाइन किया होगा, उसी पोर्शन बॉल में, उसी पोर्शन प्लेट में आपको सर्विस होना चाहिए. ओके, इसमें क्या करता है, बहुत सारे जो स्मार्ट होता है, जो टीप चोरी करने की जो कोशिश करता है, वो यहाँ पे गेम कर जाता है कि गेस्ट सी अगर कॉम्प्लीमेंट्री लोग क्या करता है, ऑफर करता है, पापड़ करता है, चटनी करता है, करता है, तो इससे क्या करता है, लोग यहाँ से बुफे से ही चुरा करके गेस्ट को सर्विस करता है. और गेस्ट क्या करता है, बहुत खुश होता है, तो उसको $2, $5, $10 या $100-200 रुपया यहाँ पे उनको हाथ में पकड़ा देता है.
तो यहाँ से भी बहुत बड़ा लीकेजेस कंट्रोल हो सकते हैं। नो कम ऑन दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस फाइनेंस, बट नो हाई वैल्यू आइटम है तो आपको एवरीडे उसको आइडेंटिफाई करना और वेरिएंस देखना बहुत जरूरी होता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7, द वेस्ट कंट्रोल। व्हाट इज द वेस्ट कंट्रोल? आइडेंटिफाई द रीजन फॉर वेस्टेज। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने मटेरियल जो खरीदा है वो लो क्वालिटी है, आपके पास जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है या नहीं है, या आपके पास ऐसा आपने जो स्टोरेज किया है वो गलत जगह पे तो नहीं कर दिया है। व्हाट इज द रिड्यूस एंड रिसाइकलिंग? आपके पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो आप गैस को सर्विस करते हो, वो टच नहीं करता, वो यूज नहीं करता है, आप क्या करोगे, उसको डस्टबिन में फेंक दोगे। ऐसा नहीं करना है। अगर उन्होंने टच नहीं किया, ये पैक्ड है, सील्ड है, तो आपको क्या करना है, इसको तो जैसे के तैसे रखना है। आप इसको आपको रीयूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, नाउ 8 नंबर इज द मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके लीकेजेस कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी फैक्टर्स को हमें सुधारने की जरूरत है। ओके, कैलकुलेट द फूड कॉस्ट। आपके पास यू नो दिस मंथ का बजट क्या था और एक्चुअल आपके बजट क्या हुआ है, वो आपको क्या करना है, आपको ट्रेस करना है और कहाँ कहाँ पे आपको लीकेजेस है उसको रेक्टिफाई करना है, उस पर एक्शन करने की जरूरत है।